Hello students, in today's topic we are going to discuss about Ziegler-Natta catalyst. This catalyst is used for alkene polymerization. In this video lecture we will discuss about some basic introduction related to polymerization, comparison of the traditional polymerization with that of Ziegler-Natta polymerization, and a mechanism for ethene polymerization using Ziegler-Natta catalyst. The word polymer is coined from two Greek words. Poly means many, and mers means parts. So the substance which is composed of a large number of parts is called polymer. Okay, that substance is called polymer. The term polymer is defined as very large number of molecules having higher molecular mass. और ये जो large number of molecules हैं, they are connected through covalent bonds. These are also referred to as macromolecules. अब क्योंकि molecular mass बहुत ज़्यादा होगा polymers का, because they are composed of large number of molecules, they are also referred to as macromolecules, which are formed by joining the repeating structural units on large scale, and these small repeating structural units are called monomers. So there are three terms basically. First is monomer. Monomer is that single unit which when repeated again and again और react करवाई जाती है आपस में, it results in the formation of polymer. So poly means बहुत सारे, mers means parts, और monomers means single part. So एक single unit. Okay. The repeating structural units are derived from some simple molecules and reactive molecules known as monomers, which are linked to each other by covalent bonds. The process of formation of polymers from respective monomers is called polymerization. बहुत ही basic सी introduction है ये. Okay, so now there are few examples. The first one is of ethene. When ethene molecules are polymerized, n number of units हमने यहाँ पे लिए हैं, polymerization की है, we will get polyethene. So ethene क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2. इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स को जब हम जोड़ते जाएंगे रिपीटेडली, देन व्हाट वी विल गेट, इस साइड भी ये बॉन्ड इनके बीच बन जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन. वी विल गेट पॉलीइथीन पॉलीमर और पॉलीथीन पॉलीमर, जिसमें CH2 यूनिट्स जो हैं दे आर रिपीटेड ओवर एंड अगेन. सो इफ वी हैव हियर 1 lakh यूनिट्स, n is 1 lakh, then we have here n is equal to 1 lakh. Okay, so this type of polymer जिसमें सिर्फ एक ही तरह के मोनोमर्स यूज हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल पॉलीथीन में मोनोमर सिर्फ एक ही टाइप के हैं, दे आर कॉल्ड होमोपॉलीमर्स. इनको क्या नाम देंगे? होमोपॉलीमर्स कह देते हैं. जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन की हुई है उसमें दो मोनोमर्स हैं, दोनों अलग अलग टाइप के हैं. फर्स्ट इज हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड द सेकेंड वन इज एडिपिक एसिड. तो इसमें हेक्सामिथिलीन डायमीन का जो NH2 ग्रुप है ये रिएक्ट करता है एडिपिक एसिड के OH ग्रुप के साथ, ठीक है, एंड देयर इज लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. सो व्हाट वी विल गेट NHCO एंड सो ऑन. ओके, सो ये जो लिंकेज बनती है, दिस लिंकेज इज कॉल्ड अमाइड लिंकेज. दैट्स वाई ये जो हेक्सामिथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड का पॉलीमर है, दे आर ऑल्सो categorized as polyamides. One more thing, ये जो पॉलीमर यहाँ पे बनता है, this is referred to as nylon 66. In nylon 66 there is meaning of every word. Nylon में NY stands for New York, LON stands for London, 6 and 6 stands for the number of carbon atoms. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेक्सामिथिलीन डायमीन में भी कार्बन एटम का नंबर 6 है, और जो एडिपिक एसिड है उसमें भी 6 कार्बन एटम है. 4 ये मिथिलीन ग्रुप्स के और 5 और 6 जो हैं, जो लास्ट वाले 2 मैंने बताया आपको, वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स ग्रुप के हैं. तो इसमें भी 6 कार्बन एटम है, इसमें भी 6 कार्बन एटम्स हैं. ओके, सो दोनों मोनोमर्स में 6 कार्बन एटम्स हैं. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज नाइलॉन 66. नाइलॉन में NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क एंड LON स्टैंड्स फॉर लंदन. सो वो पॉलीमर जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की मोनोमर यूनिट्स यूज हो रही हैं, दे आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स. दे आर कॉल्ड
copolymer. This is one type of classification of these polymers. We can also classify these polymers in another way. The first one is called addition polymer. ठीक है, why it is called addition polymer? Because in addition polymers we are just adding the monomeric units. मोनोमर यूनिट्स को हम सिंपली ऐड करते जा रहे हैं आपस में, कहीं पे भी कोई भी बाई प्रोडक्ट रिलीज नहीं हो रहा. दैट्स वाई इट इज रेफर टू एज एडिशन पॉलीमर एंड द पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन. ओके, जो सेकेंड टाइप की पॉलीमराइजेशन है जिसमें अभी हमने स्टडी किया था NH2 ग्रुप ऑफ हेक्सामिथिलीन डायमीन एंड COOH ग्रुप ऑफ एडिपिक एसिड, दे लूज one water molecule and undergo condensation. That's why this type of polymerization जिसमें कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं और क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं लाइक COOH, OH भी हो सकता है, इट कैन बी NH2. तो जिन मोनोमर्स में इस तरह के यूनिट्स प्रेजेंट होंगे दे विल अंडरगो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन. ओके, और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रही है उसके लिए मोनोमर्स के पास अनसैचुरेशन होना ज़रूरी है, मींस डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स. तो ये तो बहुत बेसिक से इंट्रोडक्शन आपको दी है मैंने रिलेटेड टू पॉलीमर्स, मोनोमर्स, मैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड पॉलीमराइजेशन. नाउ द मोस्ट कॉमन पॉलीमर इज पॉलीथीन. बहुत ही बेसिक और बहुत कॉमन सा पॉलीमर है ये, जिसमें मोनोमर यूनिट्स आर इथीन मॉलिक्यूल्स. सो मैनी काइंड ऑफ पॉलीथीन्स आर नोन विच मोस्ट with most having the chemical formula. So this is the C2H4 which is the repeating unit. So H है, यहाँ पे H है, इस तरफ को बॉन्ड बनेगा, यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो CS2 units they are repeated over and again. That's why we are saying कि C2H4 N units का ये जो पॉलीमर्स है बना होता है. The polythene is usually a mixture of similar polymers of ethylene with various values of N. Means simultaneously there is formation of large number of polymers. Assume हमने पॉलीथीन बनाना शुरू किया इथीन से, सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सिंगल चेन बनेगी. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स जिसमें n का यूनिट n नंबर जो है दैट कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट पॉलीमर चेन्स. इट कैन बी n की वैल्यू इट कैन बी एज्यूम 1000. एक और चेन बन रही है, उस चेन में एज्यूम द वैल्यू ऑफ n इज 10,000, 20,000 एंड सो ऑन. So simultaneous there is formation of large number of polymer chains, and this is referred to as polydispersity. This property is called polydispersity. All the chains are not of same length. Due to this reason we have to take the average molecular masses, and there are two types of average molecular masses. एक है वेट एवरेज मॉलिकुलर मास और दूसरा है नंबर एवरेज मॉलिकुलर मास. सो पॉलीमर्स के लिए दो मॉलिकुलर मासेस हम यूज़ करते हैं, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डिस्कशन इन टुडेज लेक्चर. सो जो पॉलीमर्स यहाँ पे बनते हैं दे कैन बी ऑफ लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी. जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, ठीक है, दे आर ब्रांच्ड, दे आर हाईली ब्रांच्ड, और ड्यू टू दैट ब्रांचिंग इनकी डेंसिटी बहुत कम होगी बिकॉज पैकिंग कम्पैक्ट नहीं हो पाएगी. जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन्स बनती हैं दे आर जनरली लीनियर, ओके, एंड आर कम्पैक्टली पैक्ड. सो जो पॉलीमर चेन्स बनेगी हाई डेंसिटी पॉलीथीन की वो क्या होंगी, लीनियर होंगी. लो डेंसिटी की ब्रांच्ड चेन्स की फॉर्मेशन होती है, और जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसमें लीनियर चेन्स बनेगी. सो लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है हाई प्रेशर पे, और बहुत हाई प्रेशर है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 5000 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 520 केल्विन. जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है वी नीड लो प्रेशर फॉर दिस, एंड द जनरली प्रेशर रेंजेस 6 to 7 एटमॉस्फेरिक एंड लो टेम्परेचर 330 to 343 केल्विन. सो पॉलीथीन इज यूजुअली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. सो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं, दोज पॉलीमर्स विच आर रिसाइक्लेबल, जिनको एक बार हीट करें, मेल्ट करें, फिर से रीमोल्ड करके उनको नई शेप्स दी जा सकती हैं. सो पॉलीथीन इज यूजुअली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर. सो दिस इज द पॉलीथीन विच वी हैव स्टडीड इन द लास्ट स्लाइड, जिसमें n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स है इथीन की, जो रिपीट हो रही हैं n नंबर ऑफ यूनिट्स रिपीटिंग यूनिट जुड़ने के बाद वी आर गेटिंग पॉलीथीन पॉलीमर. सो हमारे पास ये पॉलीमर्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है विच इज़ रेफर टू एज पॉलीथीन. इसी तरह से पॉलीप्रोपाइलिन, ओके,
we have polystyrene, we have PVC polyvinyl chloride, PMA polymethyl methacrylate, PMMA जिसको कह देते हैं, polyacrylonitrile है, PAN उसका नाम है. So for the commercial preparation of polythene in 1953, German chemist Carl Ziegler developed a catalytic system based upon titanium halides. और जो बहुत कॉमन टाइटेनियम हालाइड यूज होता है वो है TiCl4 एंड ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स. और जो ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड कौन से हैं वो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. वी हैव 3 हियर, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम. सो Ziegler-Natta catalyst is basically a mixture of two compounds. The first one is TiCl4 and the second one is triethyl aluminium. However, the capability और जो improvement थी, efficiency थी Ziegler system की, that was improved by the incorporation of MgCl2 in 1917. So triethyl aluminium and titanium tetrachloride, that is TiCl4 and triethyl aluminium, also called Ziegler-Natta catalyst, operates at very low temperature of 333 to 343 Kelvin and under a pressure of 6 to 7. So यहाँ पे temperature is below 6 to 7. So these conditions are very nominal as compared to the traditional conditions जहाँ पे बहुत high और high temperature और high pressure की requirement होती है. So high density polythene produced consist of linear molecules. अब क्योंकि ये जो conditions हैं, they will result in the formation of linear molecules which have very high density. As I told you, if a molecule is linear, then their packing is compact. और जितनी ज़्यादा compact packing होगी, उनकी density उतनी ही ज़्यादा होगी. In case of branched polymers, the packing cannot be compact. Packing compact हम नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे density कम होती है. और ये जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इट इज़ आल्सो केमिकली इनर्ट एंड मोर टफर एंड हार्डर देन लो डेंसिटी पॉलीथीन. एंड वेयर इट इज़ यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल्स, पाइप्स, एटसेट्रा. नाउ एज आई टोल्ड यू, द Ziegler-Natta catalyst consists of two chemicals. One is TiCl4, this is TiCl4, and the second one is ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. तो ये दो कंपाउंड्स का मिक्सचर है विच इज़ कोलेक्टिवली कॉल्ड Ziegler-Natta कैटलिस्ट. मैकेनिज्म था फॉर Ziegler-Natta पॉलीमराइजेशन फॉर इथेन और प्रोपाइलिन. दिस वाज प्रपोज्ड बाय कॉजे एंड आर्लमन. सो व्हाट दे प्रपोज्ड, they said that the initiation step according to them consists of the replacement of one of the chloride ion coordinator to titanium 3 ion. So this TiCl4 is changed into a coordinated compound जिसमें टाइटेनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 पॉजिटिव होगी. सो इनिशियली ये इन C2 इसकी जनरेशन होगी. ओके, किससे? फ्रॉम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. सो ये जो कंपाउंड TiCl4 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है. बट इन C2 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ a coordinate compound of this TiCl4 जिसमें टाइटेनियम is reduced to +3 oxidation state. This is very important. और उस TiCl4 में one of the coordination site is occupied by the ethyl group which is coming from triethyl aluminium. And we also know that this triethyl aluminium is basically Lewis acid and it exists as a dimer. So this dimer can be plotted or shown. और इसका स्ट्रक्चर जो है इट कैन बी शोन लाइक दिस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डाइमेरिक फॉर्म ऑफ ट्राईइथाइल एल्यूमिनियम. और दो इसमें जो इथाइल ग्रुप होंगे दे विल बी ब्रेस्ड. सो दो इथाइल ग्रुप इसमें ब्रेस्ड हैं. So this is the triethyl aluminium जो एग्जिस्ट कर रहा है एक्चुअली डाइमेरिक फॉर्म में. ये रिएक्ट करता है TiCl4 के साथ और कैटलिस्ट की एक्टिव फॉर्म बनाता है. और वो एक्टिव फॉर्म जो है कैटलिस्ट की वो क्या होगी? दैट इज Ti. We have 1 2 3 4 5 and 6. So we have Cl here, Cl here, Cl here, Cl here and ethyl group at this position. Now from where this ethyl group is coming? It is coming from this triethyl
एल्यूमिनियम moiety और साथ में वन साइट इज लाइंग वेकेंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बताया यहाँ जो ऑक्सीडेशन स्टेट टाइटेनियम की अब हो जाती है वो है +3। और ये जो क्लोराइड है यहाँ पे एज लिगेंड एक्ट कर रहे हैं, दे आर नॉट अलोन हेयर, दे आर फर्दर कोऑर्डिनेटेड टू अदर मेटल सेंटर्स इन दिस वे। ओके, और साथ में यहाँ पे जो प्रोडक्ट बचता है अब वो है एल्यूमिनियम, दो इसके साथ यहाँ पे इथाइल ग्रुप बच जाएंगे और एक होगा Cl। सो ये भी अपने आप में यहाँ पे एज ए को कैटालिस्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो ये जो कंपाउंड यहाँ पे बाई प्रोडक्ट बन रहा है ट्राई इथाइल क्लोरो कंपाउंड जो है एल्यूमिनियम का, इट एक्ट्स एज को कैटलिस्ट फॉर द सेम रिएक्शन। सो दिस इज द बेसिक डिस्कशन अबाउट जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट। उसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, कैसे बनेगी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम डाइमेरिक फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज आपको बता दिया एल्यूमिनियम जो है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, लुईस एसिडिक है उसका। अगर हम ये देखें Al, अगर मैं इथाइल ग्रुप को R की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, सो वी हैव ओनली 3 कोवलेंट बॉन्ड्स अराउंड एल्यूमिनियम, 3 कोवलेंट बॉन्ड्स मीन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के चक्कर में व्हाट हैपन्स, इट फॉर्म्स अ ब्रिज्ड स्ट्रक्चर विद अनदर ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। ये स्ट्रक्चर सेम वैसे ही है जैसे AlCl3 विच एग्जिस्ट एज डाइमर और क्या बना देता है Al2Cl6। बट वहाँ पे जो क्लोरो है, क्लोरो एटम्स हैं, क्लोरीन एटम्स हैं, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी दैट विल बी फॉर्मेशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम दैट ऑफ ट्राई क्लोराइड एल्यूमिनियम, मीन्स एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड। सो ये थी एक्टिव फॉर्म। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ जिग्लर-नाटा कैटलिस्ट, जिसको हम अब कैटालिटिक साइकिल में यूज करेंगे। और ये भी आपको बता दिया इथाइल क्लोरो एल्यूमिनियम कंपाउंड बनेगा दैट एक्ट्स एज अ को कैटलिस्ट इन दिस केस। So again repeating, the alkyl aluminum means triethyl aluminum which is a Lewis acid alkylates the titanium atom on the surface of solid to give coordinately unsaturated titanium alkyl complex which acts as a Lewis acid। हमारे पास कम्प्लेक्स बनेगा टाइटेनियम कम्प्लेक्स, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम अल्कीन। कहाँ पे, जहाँ पे ये वेकेंट साइट बन रही है, बिकॉज दिस इज कोऑर्डिनेटली अनसैचुरेटेड। सो व्हाट इट विल डू, इट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जैसे आपको बताया है दिस इज इथेन, इथेन में पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस वेकेंट साइट। The coordinated alkene then undergoes migratory insertion reaction and so on, so which we will discuss in the catalytic cycle. As we have studied in the last slide, active form of the catalyst can be represented as shown here. Here we have the vacant site. यहाँ पे है हमारे पास इथाइल ग्रुप, और ये इथाइल ग्रुप कहाँ से आया, it is coming from ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम। सो दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द कैटलिस्ट, जिसमें टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइटेनियम इज रिड्यूस्ड फ्रॉम +4 to +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप देयर विल बी अल्कीन कोऑर्डिनेशन। सो ये अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी एट दिस वेकेंट साइट, जहाँ पर वेकेंट साइट हमने शो की हुई है विद टाइटेनियम। सो व्हाट वी विल गेट Ti, हियर वी हैव द कोऑर्डिनेटेड अल्कीन। और अल्कीन जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, इथेन। सो दिस मैकेनिज्म इज फॉर इथेन पॉलीमराइजेशन। हियर वी हैव इथाइल ग्रुप एंड ऑल अदर पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय Cl एटम्स। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल हैपन, देयर इज अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन, अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट। फर्स्ट इज कि अल्कीन इंसर्ट हो रही है टाइटेनियम और कार्बन एटम के बीच में जो इथाइल ग्रुप का है, और दूसरा है कि अल्काइल ग्रुप माइग्रेट हो रहा है। इफ दिस अल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट विच कैन बी शोन हेयर, और ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेयर वी हैव इथाइल ग्रुप, यहाँ पे है CH2 ग्रुप। तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा, ये मेटल का बॉन्ड इधर बनना शुरू हो गया, ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा, और ये बॉन्ड
जो टाइटेनियम और मिथिलीन ग्रुप के बीच में ये वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा। ओके, टाइटेनियम का CS2 के साथ बॉन्ड, इट विल बी इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, डबल बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। यू हैव CS2 हेयर, और यहाँ पहले बॉन्ड नहीं तो इनके बीच बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। सो हेयर वी हैव Cl एंड अदर Cl एटम्स। सो इस तरह से हमारे पास एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी यहाँ पे, और उस स्टेट में फाइनली क्या होगा, ये जो बॉन्ड है यहाँ से, ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो जाएगा। सो दिस इज अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन, और इस ग्रुप की माइग्रेशन के बाद व्हाट वी विल गेट दिस पार्ट, दिस कंपाउंड टाइटेनियम। नाउ दिस होल ग्रुप, ये टाइटेनियम इधर बॉन्ड बना लेगा, दिस बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, TiCS2 बॉन्ड बन जाएगा। सो वी विल गेट CS2 के बाद फिर CS2 ग्रुप है, CS2 ग्रुप के बाद फिर हमारे पास CS2 ग्रुप आ गया, और CS2 ग्रुप के बाद फिर हमारे पास CS3 ग्रुप आया। और जहाँ से ये इथाइल ग्रुप शिफ्ट कर गया है, माइग्रेट कर गया, वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी वेकेंट साइट, एंड देयर आर 4 Cl एटम्स एज लिगेंड्स। तो वो मैंने यहाँ पे बना दिया। तो फिर से यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन साइट क्रिएट हो गई। इस कोऑर्डिनेशन साइट के साथ फिर क्या होगा, फिर से एक अल्कीन कोऑर्डिनेट करेगी। ओके, और अल्कीन कोऑर्डिनेट करने के बाद फिर हमारे पास क्या होगा, अब इस बड़े ग्रुप को मैं एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, Cl, हियर वी हैव Cl, और यहाँ वेकेंट साइड पे क्या कोऑर्डिनेट हो जाएगा, CH2, अल्कीन कोऑर्डिनेट कर गई, और यहाँ क्या बनेगा, CH2, और बाकी सारे को मैंने यहाँ पे R की फॉर्म लिख दिया। तो फिर से यहाँ पे एक 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, एंड ये चेन लंबी हो जाएगी, एंड सो ऑन द प्रोसेस विल गो ऑन अनटिल कि जो अल्कीन है मीन्स इथेन है, वो सारी की सारी इस तरह से एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट ना हो जाए। सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैटालिटिक साइकिल इज अल्कीन कोऑर्डिनेशन, द सेकेंड स्टेप इज अल्काइल माइग्रेशन, अल्काइल ग्रुप माइग्रेशन, जिसमें क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, और फिर हमारे पास अगेन एक अल्काइल कम्प्लेक्स बन जाएगा, बट जिसमें अब कार्बन एटम का नंबर बढ़ चुका है। यू कैन सी हियर, स्टार्टिंग में यहाँ पे जो कार्बन एटम थे वो सिर्फ 2 थे, बट अब जो यहाँ पे चेन बन रही है उसमें 4 कार्बन एटम है, अगले स्टेप में 6 हो जाएंगे, 8 एंड सो ऑन, इस तरह से ये बनता जाएगा। और फाइनली द प्रोडक्ट विल बी एलिमिनेटेड थ्रू बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन टू फॉर्म द डिजायर्ड अल्कीन। So this was all about for alkene polymerization, particularly ethane polymerization using Cauchy-Arlman mechanism. Thank you.